की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका गुरु चरनां विच जुड़न दा समा नसीब होया। सतगुरु दी किरपा नाल गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता। गुरु दी बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न दा निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। अज दा ये पावन बचन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने रहमत करके बख्शिया। गुरु अर्जुन देव महाराज कृपा करके समझाते हैं। सतगुरु कहते जिन्हां दा अपने प्रीतम नाल अपने प्यारे नाल प्रेम है, उन्हां नूं कदे आलस नहीं व्यापदा। उन्हां नूं कदे आलस नहीं आउंदी, क्योंकि उन्हां दा मन वाहिगुरु दे प्रेम विच है अते मन अंदर लालसा है परमेश्वर दी। इसलिए परमेश्वर दी लालसा रखण वाले कदे किसी भी किस्म की ढिल, किसी भी किस्म की आलस नहीं करते। सतगुरु कहते प्रेम अपने प्यारे अपने प्रिय परमेश्वर दे प्रेम विच सहज मन विच सहज, जिहदे अंदर प्रेम आ गया अपने प्यारे प्रति, उहदे जीवन विच सहज आ जाता है, टिका। प्रेम अपने नाल बहुत सारे गुण ले आउंदा है अपने नाल। इसलिए प्रेम की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर बंदे दे अंदर प्रेम की संभावना हुंदी है। हर बंदे दे अंदर, हर बंदा प्रेम अपने अंदर लैके ही उपजदा है, इस संसार अंदर जन्मदा है। असी संसार दे मोह माया विच, संसार दे झमेलियां विच उलझ जाने आ। इसलिए प्रेम किते हनेरे विच दबिया रह जांदा है ते मोह वो प्रगट हो जाता है, सानू मोह पकड़ लैंदा है। असी मोह नूं ही प्रेम समझी बैठे रहंदे हैं। मोह बंदे नूं करदा है सीमत। साडी एक सीमा तय कर दिंदा है कि असी उस सीमा तो, उस दायरे तो बाहर नहीं जा सकते। पर प्रेम है असीम, लिमिटलैस, जिहदी कोई बाउंड्री नहीं है, जिहदी कोई लिमिट नहीं है, जिहड़ा सब सीमावां तो परे, जिहदी कोई हद नहीं है, बेहद। इसलिए वो सारी दुनिया नूं अपने कड़ावे विच लैण दी हिम्मत रखदा है, मोह नहीं। मोह सिर्फ जिस बंदे नाल मोह है वो कहंदा यही मेरी दुनिया, बाकी भावें मरन। वो कहंदा मेरा बचना चाहिए, बाकी जिथे मर्जी रुड़न बन, मैनू की। मोह इत्थे तक सीमित है। ते प्रेम वो सारी दुनिया दे वास्ते, सब दे वास्ते सोचण लग जाता है। इसलिए उसका दायरा बहुत विशाल है। इसलिए प्रेमी दे अंदर तुसी हमेशा सहज देखोगे। सहज जे किसी बंदे नूं अपने बच्चे नाल ही बहुत प्रेम है, मोह नहीं प्रेम, जे बहुत ज़्यादा प्रेम है
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਇਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਫਾਲਿੰਗ ਇਨ ਲਵ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਲ ਇਨ ਲਵ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਕਿਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਟਿਕਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਜ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੜਫਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਧਰੋਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਨੰਦ ਧਰੋਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਝਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਝਰਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ, ਖਿਆਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਬਸ ਸੌਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਪਏ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਭ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਹਜੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੀ, ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਲਸ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਨੇ।
दुनिया सुत्ती पई, जिस वक्त दुनिया सौ रही हुंदी है उस वक्त भगत जागदा है, उस वक्त भगत जागदा है। सानू आलस ऐसी है, असीं कहंदे कि चलो 10 मिनट होर पै लैंदे आ, हले बथेरा समा पिया है, 10 मिनट होर। इस तरह करदियां करदियां साडा रोज़ 10-10 मिनट करदियां जीवन गुजर जांदा है कि 5-4 मिनट होर, 5-4 मिनट होर बस। असीं उत्थे की उलझे रह जांदे आ, सानू कदे जाग ही नहीं आउंदी, भगत नूं नींद नहीं आउंदी। इसलिए सतगुरु कहंदे प्रभ मिलवे की लालसा, ताते आलस कहाँ करो री। मैं आलस क्यों करा? क्योंकि उन्होंने मिलने की लालसा है। इसलिए सतगुरु कहते दुनिया माया दी नींद विच, माया दे मोह दी नींद विच सुत्ती पई, सोए रही प्रभ खबर ना जानी। ये दुनिया माया दे मोह दी नींद विच सुत्ती पई ते प्रभु दी कोई खबर नहीं जानी, उस परमेश्वर नूं जाणिया ही नहीं। सोए रही प्रभ खबर ना जानी, परमेश्वर दी कोई खबर नहीं। सुत्ते पे ने लोग, सिर्फ सवेर दी नींद नहीं, लोग वैसे भी सुत्ते ही पे ने, माया दे मोह विच, काम क्रोध विच, ईर्षा विच, निंदा विच। बंदे नूं खुद नूं पता भी नहीं लगता है कि एक क्रोधित हो जाता है। क्रोध करना नहीं पैंदा, क्रोध अपने आप प्रगट हो जाता है, लोभ अपने आप प्रगट हो जाता है, मोह अपने आप पर। यह सुत्ता होया बंदा है। सुत्ते हुए बंदे दे मन अंदर बहुत कुछ पैदा हुंदा है। चंगे काम वास्ते बंदे नूं कोशिश करनी पैंदी, पर माड़े काम वास्ते बंदे नूं कोई कोशिश नहीं करनी पैंदी, बंदा झटपट उठ के तुर पैंदा है। सतगुरु कहंदे बुरे काम को उठ खलोया, बुरे काम वास्ते उठ के तैयार हो गया कि चलो हुणे चलदे हैं। नाम की वेला पै पै सोया, चंगे काम वाले उदों प्यार रहिंदा है, उदों कहंदा कोई नहीं हजे बथेरा समय, हजे बथेरी उम्र पई है, हजे बहुत लंबा समय। लोग ये सोचते रहते हैं बथेरी उम्र है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे जरा जान, तुहानू मैनू सानू कोई बंदा आके जरा जी कोई गल कह दे, सानू गुस्सा करना नहीं पवेगा, अपने आप आ जाएगा। कोई साडी शान के खिलाफ बोल दे, कोई कुछ ऐसी गल चुभवी गल कर दे, सानू नाल दी नाल क्रोध आ जाएगा। असी कोशिश नहीं करांगे कि मैं थोड़ा जिहा रुक के गुस्सा कर ला ना, उस वक्त आ जाता है। सुभावक पहला बड़े शांत सा, पर किसी ने कोई गल कही नाल दी नाल गुस्से हो गए। इस सहज विच जो हो रहा है, जिहड़ी चीज सहज विच हुंदी है वो साडे सुभाव का हिस्सा हो जाती है, वो साडे सुभाव का अंग बन जाती। इसलिए बहुते लोग जिहड़े ज़्यादातर क्रोध करते हैं, उन्हां दा तुसीं चेहरा देखो कि तुहानूं लगेगा कि सड़िया होया, क्योंकि हर वेले गुस्सा ही, निक्की निक्की गल ते गुस्सा हो जाता है, निक्की निक्की गल ते क्रोध हो जाता है। तो वो हुण उन्हां दे सुभाव का ऐसा अंग बन गया कि हुण उन्हां दा चेहरा भी हर वेले सड़िया भुज्जिया। तुसीं सवेरे चले जाओ, दोपहरे चले जाओ, शाम चले जाओ, रात चले जाओ, जदों मर्जी वो तुहानूं सड़े भुज्जे मिलणगे, मत्थे ते त्यूड़ियां मिलणगी, क्योंकि हुण आदत बन गई है, सुभाव बन गया। हुण उहदे लई ये नींद हो गई है। तो ऐसा बंदा वो सिमरन साधना करेगा भी तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि सहज उसका कुछ होर है, क्रोध उहदे कोलों सहजे हो रहा है, तो सिमरन वास्ते कोशिश करनी पै रही है, चंगे काम वास्ते यतन करना पै रहा है, तो क्रोध वेस वास्ते कोई यतन करना नहीं पैंदा। नाल दी नाल गाल तां जुबान ते ही है, वाहिगुरू कहण लई थोड़ी कोशिश करनी पैंदी, पर गाल कढण लई वो तां बस जरा जा तुसीं छेड़ो सही। सतगुरु कहंदे बंदा सुत्ता होया माया विच, क्रोध विच, लोभ विच, ईर्षा विच, निंदा विच। जरा जा तुसीं किसी बंदे की सिफत करो कि जिहड़ा फलाना आदमी है ना,
बड़ा वधिया बंदा है, उन्हें वेखो कितना वधिया घर बना लिया। साडा मन हस के टौंट जा मार के कहेगा मैनू पता है अजकल एवें नहीं घर बनते, बेईमानियां करनियां पैंदियां, रिश्वतखोरियां करनियां पैंदियां, अजकल किहड़ी मेहनत, जरा भी नहीं। नाल दी नाल असीं ऐसा जवाब देवांगे, ये सुत्ते हुए मन की निशानी है। असीं बिल्कुल नहीं कहांगे कि हाँ भाई भी मेहनत नाल बन ही जांदे घर, पर असीं कहांगे नहीं अज दे समय तां बेईमानी चलदी। सतगुरु कहंदे ये सुत्ता होया मन है, इनू प्रभु की कोई खबर नहीं, परमेश्वर बारे कुछ नहीं जानता, बस माया विच उलझिया होया। सोए रही प्रभ खबर ना जानी, माया विच सुत्ती पई साडी जिंद, परमेश्वर की कोई खबर नहीं जानी, उहदे कोल बह के भी, उहदे घर रह के भी उहदी खबर नहीं जानी, उसनूं जाणिया ही नहीं। भोर पिया बहुत पछतानी, जदों दिन चढ़िया तां फिर पछतावा होया। जदों दिन चढ़ गया, जदों मौत आके सामने खड़ो गई ना, उदों बहुत पछतावा होया। जदों दिन चढ़ जाता है फिर बंदा पछताउंदा ही है, जदों समा गुजर जाता है फिर पछतावे तो इलावा बंदे दे पल्ले होर की पैंदा है, कुछ भी तो नहीं। पहला लोग कहते रहते हैं बथेरा समय है, 10 मिनट होर पै जाइए, 10 मिनट होर सौ जाइए, हले बथेरा समय, बच्चे ब्याह लीए, हले बथेरा समय, घर बार बना लीए, हले बहुत समय, अपने पोत्तियां दोतियां दे मूँह देख लीए, हले बथेरा समय, उन्हां दा भी विआह कर लीए, हले बहुत समय। सारी जिंदगी इवें करदियां लंघ जाती, जिस दिन मौत आ जाती है उस दिन लगता है कि मेरे को तो समा ही थोड़ा सी। 70-80 साल का आदमी भी इस दुनिया तो जावे तो लोग कहते ने कि हले कोई बहुती उम्र तो होई नहीं सी। कोई 20-22 साल का, 20-25 साल, 30 साल का जवान आदमी तुर जाए तो गल समझ आती है कि हाँ हले तो बंदा जवान सी, पर कोई 90-80 साल का बंदा भी तुर जाए तो लोग कहते हैं जी हले तो चंगा भला तुरया फिरदा सी, हजे तो कोई एड्डी उम्र भी खासी नहीं सी होई। सतगुरु कहते वो बंदा पछताउंदा है, वो कहता कि हाले तो कुछ भी नहीं मैं देखा, हाले तो मैं वेख्या कुछ नहीं। सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहते फिर पछताउणा पैंदा जदों मौत सामने खड़ो जाती आ के। भोर पिया बहुत पछतानी, दिन चढ़ गया तो फिर पछतावा होया, फिर पछतावा होया कि चंगा हुंदा जे मैं पहलां उठ जांदा, चंगा हुंदा जे पहलां समझ आ जाती। इसलिए बाद विच सिवाए पछतावे तो साडे पल्ले कुछ भी नहीं आउंदा, असीं पछताउंदे ही हाँ। प्रेम सहज मन आनंद धरौंदी, प्रभु दे प्रेम विच मन सहज विच जदों टिक जांदा है तां आनंद हासिल हुंदा है, तां मन नूं आनंद मिलदा है। प्रभ मिलवे की लालसा ताते आलस कहाँ करौंदी, प्रभु नूं मिलन दी है लालसा, इस करके मैं आलस क्यों करा, फिर आलस नहीं व्यापदी रहा। कर मैं अमृत आण निसारियो, वाहिगुरू ने गुरु ने किरपा की, उन्हें मैनू हथ दे विच अमृत दिता। कर मैं, कर मतलब हथ, आण निसारियो उन्हें आके मेरे हथ विच निसारिया, मेरे हथ विच उन्हें अमृत पाया कि लै आ चूड़ा। ऐसा ही होंदा ना कि 5 प्यारे सानू हत्थां विच तां दिंदे ने, किसी भांडे विच तां दिंदे ने कि लो भाई भांडिਆਂ विच पा के अमृत पी लो, वो सानू हथ विच दिंदे ने। उहदी एक इंपॉर्टेंस है, खास गल है जिहड़ी इत्थे गुरु साहब कह रहे हैं। अमृत वो किसी कौली विच, किसी चम्मच विच जां किसी होर ढंग नाल भी दिता जा सकता है, पर उहदा लाभ नहीं, जिहड़ा उहदा भाव है वो इत्थे समझण वाला है, जिहड़ी इत्थे गुरु साहब गल करदे। सतगुरु कहंदे वाहिगुरू ने, गुरु ने अमृत दिता हथ विच कि लै, क्योंकि अमृत ऐसा ही है, ये 1-2 बूंदा ही ने, ये कुछ कोई है, ये सिर्फ चूड़ा मात्र है, ये अमृत दा घुट है। ते सतगुरु कहंदे जेड़ा बंदा
इस अमृत दे एक घुट नूं संभाल नहीं पाता, फिर उहदा जीवन व्यर्थ हो जाता है। खिसर गए हो अपनी आलस करके, खिसर गया, हथ विचों निकल गया। किन्ना क सी घुट, एक तां सी, एक घुट सी ते हथ विचों खिसर गया। खिसर के गए हो, भूम पर डारियो, जमीन ते डिग पिया। बस यही कि साडे कोल आही अमृत इक्को ही है, ये जीवन अमृत वर्गा ये जीवन वाहिगुरू ने सानू बख्शिया। ते जे ये साडे हथ दे विचों खिसक गया, निकल गया, तो दोबारा नहीं मिलना, ये दोबारा नहीं हासिल होएगा। इसलिए गुरु साहब ने, हुण तुसीं अमृत वेले बारे सुनिया, अमृत वेला जो तड़के है, सूरज चढ़न तो पहलां दा समा, दिन दा, रात दा आखिरी पहर। गुरु साहब कहते ने कि ये अमृत वेला तेरा समुच्चा जीवन हो सकता है। जैसा सहज, जैसा टिका अमृत वेले हुंदा है, तेरा पूरा जीवन अमृत वेला हो सकता है जे उसनूं संभाल लवें। इसलिए जिन्हां ने उस एक वक्त नूं संभाल लिया, उन्हां दे सारे वक्त अमृत वेले जैसे हो गए। इसलिए ये अवसर साडे हथों खुंज ना जावे, ये अमृत साडे हथ विचों खिसक ना जावे, क्योंकि एक घुट है, जरा जिहा ध्यान इधर उधर गया तो ये खिसक गया, ये हथ विचों डुल गया। सतगुरु कहंदे ये जीवन भी ऐसा ही है, साडा ध्यान माया विच गया, साडा ध्यान रूप रंग विच गया, साडा ध्यान संसार दी चकाचौंध चमक दमक वल गया, वासना वल गया, तो जीवन खत्म, जीवन खत्म, बस इन्ना कु है। इसलिए सतगुरु कहंदे कर मैं अमृत आण ने सारिओ, उसने कृपा करके हथ दे विच अमृत चोया, हथ विच अमृत बख्शिया। खिसर गयो, हथ विचों खिसक गया, भूम पर डारियो, भूम ते जमीन ते डिग पिया। साध मोह लादी अहंकारे, सतगुरु कहंदे बंदे दी जिंद माया दे स्वादां नाल अते हंकार नाल लद्दी पई है। साडा मन माया दे हंकार विच, चीज़ां दे हंकार विच ते दुनियावी चीज़ां दे चस्के लैण विच, स्वाद लैण विच लगा होया, स्वाद लैण विच। सतगुरु कहंदे माया दे स्वादां विच उलझे। इसलिए वाहिगुरू दा स्वाद कित्थे आवे, परमेश्वर दे नाम दा स्वाद कित्थे आवे, बाणी दा स्वाद कित्थे आवे। बाणी दे नाल नाल ते होर स्वाद लैंदा फिरदा माया दे, काम क्रोध दे, विषयां विकारां दे। इंज नहीं। इसलिए इस गल का भी ख्याल रखना कि जदों तुसी बाणी पढ़ रहे होवो, बाणी पढ़न तो पहला कुछ खा पी लवो, विचकार नहीं कि हाँ मैं पाठ करदा नाल नाल मैं पानी पी लवां, नाल नाल मैं कोई होर चीज़ भी खा लवां। नहीं, ये ठीक नहीं, ये नहीं। इसलिए जां पहला जां बाद विच, विचकार नहीं। विचकार तो सिर्फ उहदे नाम की भुख लगे, पाठ करदे ना उहदे नाम दे स्वाद आवे, पर साडा मन कहंदा है कि गर्मी बहुत है, चलो पाठ करदे, एक हत्थ विच गुटका फड़िया, दूसरे च पानी का गिलास, ते ठंडा पानी पी लीए, मिठा पानी पी लीए। असीं जाने अनजाने विच, जीव दे स्वाद विच, माया दे मोह विच असीं बाणी दी भी बेअदबी करी जाने आ, समझदे नहीं। ते ओ जो ख्याल रखना, जे तुहानूं पाठ करदिआं सिमरन करदिआं भुख लगदी है ना, तां उस वेले रोटी दा ख्याल ना आवे, खाण दी किसी वस्तु का ख्याल ना आवे
क्योंकि मन नूं भुख लगी हो सकती है परमेश्वर के नाम की, तो तुसीं मन विच फुरना पैदा कर लो रोटी का, तो फिर रोटियां पल्ले रह जानियां, जद कि साडे पल्ले लंगर रोटियां रह गईयां। जे भुख लगती है ना तो चंगी चीज़ है, वो गलत नहीं है, क्योंकि मन विच भुख लग रही है परमेश्वर के नाम की, बाणी की, सिमरन की, पर सानू लग्या कि शायद खाण की भुख लगी, इस करके असीं खाण वाले पासे नूं तुर पए ते वाहिगुरू के नाम तो भुखे रह गए, खाली रह गए। इसलिए वो प्लस पॉइंट है जे तुहानूं भुख लगी तो। पर खाण वाल नूं ना अपने मन नूं ले जाना, मन नूं होर सिमरन का स्वाद लैण वाले पासे लाउणा, होर बाणी का स्वाद लैण वाले पासे लाउणा। हाँ, बाद विच रज के खा लैण कोई गल नहीं, पर विच विचकार नहीं। सतगुरु कहते बंदे का मन साध मोह लादी अहंकारे, माया के स्वाद लैण विच, चीज़ां के स्वाद लैण विच ते हंकार विच लग्या होया, लद्या पिया, भरिया पिया माया के हंकार नाल। दोष ना ही प्रभ करने हारे, ते प्रभु नूं की दोष दईए फिर? प्रभु का दोष थोड़ी है, दोष तो साडी जीव के चस्कियां दा है, दोष तो साडा है, क्योंकि असीं तो देख रहे हैं कि की बनया होवेगा लंगर विच। इसलिए तो सानू रस नहीं आ रहा कीर्तन विचों, कथा विचों, बाणी विचों, सानू रस आ रहा खाण विचों, कि किहड़ी घड़ी समाप्ति होवे ते लंगर च जाइए, साडा तो स्वाद उत्थे है। सतगुरु कहते प्रभु का दोष नहीं है, दोष ना ही प्रभ करने हार है, प्रभु का दोष नहीं, दोष साडे साध दा, दोष साडे मन का, जिहड़ा ये दुनियावी चीज़ां दे स्वाद विच लगा होया। सतगुरु कहते साध संग मिटे भरम अंधारे, गुरु दे चरनां नाल जुड़ के, साधु दे संग जुड़ के सारे भरम ते हनेरे मिट गए, माया दे भरम हनेरे मिट गए गुरु दे संग, नानक मेली सिरजनहारे। वाहिगुरु ने कृपा की, उस सिरजनहार परमेश्वर ने अपने चरनां नाल मेल लई, उन्हें रहमत करके अपने चरनां नाल जोड़ लिया। ओदी दया हुंदी है तां ही असीं जुड़दे हां, ओदी रहमत हुंदी है तां ही असीं ओदे नाल जुड़ पांदे हां। इसलिए गुरु दे संग ही साडे मन विचों माया दे भरम भुलेखे निकलते हैं। सतगुरु रहमत करे माया दे भरम भुलेखे साडे मन विचों निकलण ते वाहिगुरू नाल सांझ पवे। अज दा दिन सिख इतिहास विच बड़ी महत्ता रखदा है। अज दे दिन वड्डी गिणती दे विच सिखां दा कतलेआम होया। गुरदासपुर दे विच कानूवाल दी छंभ विच मुगलिया हकूमत वालों, लखपत राय वालों सिखां नूं एक थां घेर के वड्डी गिणती विच कतल किया गया। इस दिन नूं, इस दिहाड़े नूं छोटे घल्लू घारे दे नां नाल जाणिया जांदा है। इस दिन लगभग कोई 10 तो 20 हज़ार के करीब सिख इक्को दिन विच मारे गए सन। उन्होंने बहादरी नाल मुकाबला किया। पहला गुरु के सिख जंगलों में लुके, जंगलों नूं अग ला दी गई, उत्थों बचते हुए वो पानी दे विच जा छिपे। तो लखपत राय वर्गे जदों कोई सिख पानी तो बाहर सिर कढ़दा तो वह तीर नाल जां गोली नाल सिखां दे सिर पुंडदा। उत्थों बचते बचाउंदे वो बड़ी मुश्किल दे नाल रेतले इलाके वल नूं निकलदे ने। ते गर्मी दे दिन, अज दे दिनां विच गर्मी दे दिन नंगे पैरी रेत दे उत्ते तुरदे ने। ते जदों रेत ते तुरदियां पैरां विच छाले पै गए तां अपने तन दे कपड़े पाड़ पाड़ के उन्होंने पैरां हेठां बन्ने। पैरां हेठां कपड़े बन्ने तां बड़ी मुश्किल दे नाल कुछ कुछ सिख बच सके। पर वड्डी गिणती विच अज दे दिन सिखां दा कतलेआम होया। पर गुरु के सिख फिर भी डोले नहीं, फिर भी अपने भैणां भाइयां नूं अपनियां अखां दे सामने कतल हुंदियां देख के भी मन नहीं डुलाया। गुरु दे चरनां नाल जुड़े रहे ते फिर बहुत जल्दी उठ खड़ोए। ते उन्हां दा जिन्हां ने सिखां दा कतलेआम कीता फिर उन्हां नूं फिर इस गल दा सबक भी सिखाया। खैर उन्हां दी शहादत नूं कोटान कोट प्रणाम है, जिन्हां ने सिੱਖੀ नूं बचाउण लई
ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।